گلگت بلتستان میں انتخابی دنگل کل سجے گا، تیاریاں مکمل کر لی گئیں۔ گلگت بلتستان کے 24 حلقوں کے ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ پولنگ صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک جاری رہے گی۔ گلگت بلتستان اسمبلی کے انتخابات میں مجموعی طور پر 12 سے زائد جماعتوں اور آزاد سمیت 396 امیدوار میدان میں ہیں۔ گلگت بلتستان میں مجموعی طور پر 9,58,480 ووٹرز رجسٹرڈ ہیں۔ گلگت بلتستان کے تمام حلقوں میں 1389 پولنگ سٹیشنز اور 2450 پولنگ بوتھ بنائے گئے ہیں۔ شفاف اور پرامن انتخابی عمل کے لیے 7678 افراد پر مشتمل انتخابی عملہ اور 12,000 سے زائد سیکیورٹی اہلکار ڈیوٹی دیں گے۔ گلگت بلتستان کے عوام کے حق ملکیت کا خواب پیپلز پارٹی نے حقیقت میں بدل دیا۔ تاریخی قانون سازی سے 28,000 مربع کلومیٹر زمین کے مالکانہ حقوق کو قانونی تحفظ دیا۔ بلاول بھٹو زرداری کا گلگت بلتستان کے عوام کے لیے خصوصی پیغام، کہا اگلا مرحلہ زمین کے مالکانہ حقوق کے قانون پر مکمل اور مؤثر عمل درآمد کا ہے۔ کوئی دوسری جماعت آئی تو یہ قانون اٹھا کر پھینک دے گی۔ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں تاکہ دیگر صوبوں کی طرح جی بی کو بھی 18ویں ترمیم کا تحفظ ملے۔ جی بی کے عوام کے حقوق کا ہر قیمت پر دفاع کیا جائے گا۔ گلگت بلتستان میں ہر طرف شیر کی آوازیں آ رہی ہیں۔ نون لیگ کو عوام ہمیشہ کارکردگی کی بنیاد پر ووٹ دیتے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب ازما بخاری کہتی ہیں گلگت بلتستان میں نون لیگ کے علاوہ کسی جماعت نے ایک اینٹ نہیں لگائی۔ مخالفین نون لیگ پر کیچڑ اچھال کر ووٹ مانگتے ہیں۔ گلگت بلتستان میں تحریک انصاف کا ووٹ بینک 0 ہے۔ نون لیگ کا مقابلہ کارکردگی سے کریں۔ جھوٹ، پروپیگنڈا ناکام سیاسی چالیں ہیں۔ ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں گلگت کو لاہور جیسا خوبصورت بنائیں گے۔ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا لگن تنظیم قرار۔ جموں کشمیر ایکشن کمیٹی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے نام سے کام کرنے والی تنظیم فرسٹ شیڈول میں شامل۔ عوامی ایکشن کمیٹی کے نام سے کام کرنے والی تنظیم بھی فرسٹ شیڈول میں شامل۔ حکومت آزاد جموں کشمیر کے محکمہ داخلہ کے نوٹیفیکیشن جاری۔ آزاد جموں کشمیر انسداد دہشت گردی ایکٹ 2014 کے تحت تنظیم کو کالعدم قرار دیا۔ صدر آزاد جموں کشمیر نے بھی منظوری دے دی۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ تنظیم کے خلاف امن و سلامتی کو نقصان پہنچانے کے معقول شواہد موجود ہیں۔ تنظیم ریاست میں انتشار پیدا کرنے میں ملوث پائی گئی۔ کالعدم قرار دی گئی تنظیم کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ کسی کو عوامی امن، سلامتی، ریاستی نظم کو خطرے میں ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے آزاد کشمیر کی صورتحال پر پیپلز پارٹی کی پارلیمانی پارٹی کا خصوصی اجلاس آج اسلام آباد میں طلب کر لیا۔ سپریم کورٹ آزاد کشمیر میں حکومت کی جانب سے بھیجے گئے ریفرنس کی سماعت مکمل۔ 2 رکنی بینچ نے دلائل مکمل ہونے کے بعد ریفرنس کے جوابات صدر کو ارسال کر دیے۔ آزاد کشمیر حکومت نے مہاجرین کی نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ سے قانونی رائے مانگی ہے۔ حکومت کا بجٹ سے متعلق معاہدے پر عمل درآمد نہ کرانا پیپلز پارٹی اور حکومت میں بجٹ پر ڈیڈ لاک کی وجہ۔ ذرائع کا کہنا ہے حکومت معاہدے کے تحت پی پی کو بجٹ تفصیلات فراہمی کی پابند ہے۔ پیپلز پارٹی نے حکومت سے متعدد بار بجٹ کا تفصیلی مسودہ مانگا، لیکن حکومت پی ایس ڈی پی ٹیکسز کی تفصیلات ظاہر نہیں کر رہی۔ پیپلز پارٹی ذرائع کا کہنا ہے حکومت ٹیکسز لیوی سے متعلق حقائق سے آگاہ نہیں کر رہی۔ جن کے پاس شہر میں جگہ نہیں وہ گاؤں یا کہیں بھی سولر لگائیں اور شہر میں فائدہ اٹھائیں۔ سولر سے بجلی پیدا کرنے والوں کے لیے خصوصی اسکیم کی تیاری۔ جن کے پاس شہر میں جگہ نہیں وہ گاؤں یا کسی بھی مقام پر سولر لگا کر فائدہ اٹھا سکیں گے۔ راولپنڈی چیمبر آف کامرس کے صدر عثمان شوکت کی ARY نیوز سے بات چیت، کہا شہروں میں فلیٹ کے مالکان اپنے گاؤں میں سولر لگا کر شہر کے فلیٹ میں سولر کریڈٹ لے سکیں گے۔ وزیر اعظم نے سولر ریلنگ کی تیاری کی ہدایت کی ہے۔ موٹر وے کے معاملے میں وفاق نے ہمیشہ سندھ کو کم ترجیح دی۔ پورے ملک میں موٹر وے بن گئی لیکن یہاں نہیں بنی۔ حالانکہ کراچی پورٹ سٹی ہے، موٹر وے کی شروعات یہاں سے ہونی چاہیے تھی۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کا کہنا ہے ہیوی ٹریفک کو ناردرن بائی پاس پر منتقل کرنے جا رہے ہیں۔ ناردرن بائی پاس پر ہیوی ٹریفک کے لیے ٹرمینل بنا رہے ہیں۔
हुकूमत ने पेट्रोल सस्ता कर दिया लेकिन उस पर लेवी बढ़ा दी। पेट्रोल की नई कीमत 4 रुपए कमी के बाद 377 रुपए 78 पैसे फी लीटर हो गई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने पेट्रोलियम लेवी फौरी खत्म करने का मुतालबा कर दिया। कहा, जब से लेवी नाफिज हुई है 8,066 अरब रुपए कौम से वसूल किए जा चुके हैं। हम पहिया जाम और हड़ताल पर मुशावरत कर रहे हैं। अमरीका ईरान मुज़ाकिरात। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का आज तेहरान जाने का इम्कान। ज़राए का कहना है मोहसिन नकवी तेहरान में ईरानी क़यादत से मुलाकात करेंगे। वज़ीर दाखिला ईरानी क़यादत को अहम पैगाम पहुंचाएंगे। अमरीका का ईरान में गौरूक और जजीरा कश्म में तंसीबात को निशाना बनाने का दावा। सेंटकॉम का कहना है आपने हुर्मुज़ और खलीजी ममालिक की तरफ दागे गए मुतादिद बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स को रोक लिया। ईरानी हमले में किसी अमरीकी एहलकार को नुकसान नहीं पहुंचा। पास्तराने इनकलाब का कहना है अमरीकी हमले के जवाब में अमरीकी अड्डों को मिसाइलों से निशाना बनाया। अमरीकी कार्रवाइयां जारी रहीं तो आपने हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर बंद कर देंगे। आपने हुर्मुज़ की बंदिश का जिम्मेदार अमरीका होगा। आबनाए हुर्मुज़ में झड़पें। बहरीन में खतरे के सायरन बज गए। मुल्क में फ़ज़ाई इंतबाह जारी। बहरीन की वज़ारत दाखिला का कहना है शहरियों और रिहायशियों से दरख्वास्त है पुरसुकून रहें और करीबी महफूज मकाम पर चले जाएं। कुवैत का कहना है फ़ज़ाई दिफा का निज़ाम मिसाइलों और ड्रोन्स को रोक रहा है। कुवैती फौज ने मजीद कहा कि धमाकों की आवाज़ें फ़ज़ाई दिफा के निज़ाम की जानिब से अहदाफ को निशाना बनाए जाने की वजह से हैं। शहरियों से अपील है हिफाजती और सिक्योरिटी हिदायत पर अमल करें। ईरान ने जंग बंदी डील पर इत्तफाक नहीं किया। अमरीकी सदर ट्रंप का एनबीसी को इंटरव्यू। कहा, ईरान के पास बिलाखिर मुआहरे के सिवा कोई रास्ता नहीं। ईरान वो इक़दाम करने पर मजबूर होगा जिसका उसने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। जंग को हल करने में वक्त लगता है, ये काम फौरी नहीं होते। यकीन है ईरान के पास सिर्फ 21 से 22% मिसाइल बाकी हैं। ईरान अमेरिका के साथ जंग मुज़ाकरात में लबनान को सौदेबाजी के मोहरे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। ईरान को लबनान के मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। लबनान के सदर जोसेफ ऑन का CNN को इंटरव्यू। कहा, ईरान के मफादात की कीमत लबनान के अवाम चुका रहे हैं। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जंग से थक चुके हैं। हिजबुल्लाह से भी कहा था इसराइल के साथ तनाज़े का वाहिद हल सिफारतकारी है। यह आपका नहीं हमारा मुल्क है। आपका काम नहीं कि आप हमारे मुल्क में मुदाखलत करें। अगर लेबनान वाकई ईरान के लिए सौदेबाजी का मोहरा होता तो बहुत पहले कोई मुआहदा हो चुका होता। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं लेबनानी सदर जोसेफ ऑन के बयानात से तो ऐसा लगता है जैसे ईरान ने ही लेबनान के 5वें हिस्से पर कब्जा कर रखा हो, 1/4 लेबनानियों को बेघर किया हो और रोजाना उनके मुल्क पर बमबारी कर रहा हो। लेबनान को उसके असल दुश्मन से निजात दिलाएं। फितना अल खारिज को अफगानिस्तान में मौजूद कमांडरों से माली मुआवनत मिलती है। ये खारिजी भत्ताखोरी, गाड़ियां छीनने, अगवा बराए तावान में मुलव्वस हैं। खारिजी कमांडर शरीयत के नफाज और जहाद के नाम पर नौजवान को बरगलाते हैं। गिरफ्तार खारिजी उमरदीन और जज्बा के इतराफी बयान ने फितना अल खारिज का गुमराहकुन बयानिया बेनकाब कर दिया। खारिजी उमरदीन ने बताया खारिजी कमांडर्स के साथ 60 से 70 अफगानी हैं जिन्होंने अफगानिस्तान से ट्रेनिंग की। खारिजी मनशियात के आदी और मरकज के अंदर गैर अखलाकी सरगर्मियों में मुलव्वस हैं। नौजवानों से अपील है वो फितना अल खारिज के झूठे दावों से बचें। पाकिस्तान और रूस के दरमियान इंसदाद मनशियात और नशा और अशिया की रोकथाम के लिए मुआहदा। गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। बिश्केश में वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, काजाकिस्तान के वज़राए दाखिला से मुलाकातें। मोहसिन नकवी ने कहा अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के कैंप्स की खत्ते की सिक्योरिटी के लिए खतरा है। अफगानिस्तान में 25 दहशतगर्द तंजीमें सरगर्म। कोकेन डीलर अनमोल और पिंकी के खिलाफ कत्ल का केस। तफ्तीशी अफसर ने उबूरी चालान प्रोसिक्यूशन के पास जमा करा दिया। चालान के मुताबिक मुद्दई मुकदमा पीर मोहम्मद रोड से गुजर रहा था।
इसी दौरान फुटपाथ पर एक शख्स की लाश मिली जहां लोग जमा थे। पुलिस के मुआयने के दौरान मकतूल की जेब से एक डिबिया मिली है जिस पर क्वीन मैडम पिंकी डॉन लिखा हुआ था। मुलजिमा के खिलाफ ताहाल इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं हुई। शोबा प्रोसिक्यूशन का उबूरी चालान की स्क्रूटनी का फैसला। कोकेन डीलर अनमोल और पिंकी की वॉइस रिकॉर्डिंग्स, पैगामात और डिजिटल शवाहिद पंजाब फॉरेंसिक लैब भेजने का हुक्म। कराची पुलिस ने अदालत में दरखास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया दौरान तफ्तीश मुलजिमा ने वॉइस रिकॉर्डिंग, मैसेजेस और दीगर डिजिटल शवाहिद से इनकार किया। शवाहिद का फॉरेंसिक कराने का हुक्म दिया जाए ताकि मुलजिमा की आवाज़ की तस्दीक हो सके। चेयरपर्सन पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने कोकेन डीलर अनमोल और पिंकी पर ड्रामा बनाने की मुखालिफत कर दी। हिना परवेज भट्ट का कहना है पिंकी पर वाकई कोई ड्रामा बनाया जा रहा है तो ये इंतहाई शर्मनाक और छिछोरी हरकत है। पिंकी कोई रोल मॉडल नहीं जिस पर ड्रामा बनाया जाए। ये माशरे में मुस्बत किरदार अदा करने वाले खवातीन की बेइज्जती है। हम कब तक व्यूवरशिप और पैसे के लिए ऐसे लोगों को रोल मॉडल बनाकर पेश करते रहेंगे। कराची दिल के मरीजों का शहर बनने लगा। रोजाना 103 अफराद को दिल का दौरा पड़ता है, जिनमें 10 मरीजों की उम्र 40 साल से कम और 2 मरीज 30 साल से कम उम्र के हैं। कार्डिक रजिस्ट्री की रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि शहर कायद में सिर्फ 2025 में 74,347 अफराद को दिल का दौरा पड़ा। पाकिस्तान में दिल के 10% मरीजों की उम्र 40 साल से कम है। बीमारी की बड़ी वजह ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और शुगर है। 50% सेहतमंद नौजवानों को ब्लड प्रेशर है लेकिन उन्हें मालूम नहीं। 70 से 80% लोग मोटापे का शिकार हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टब्बा हार्ट डॉक्टर बशीर हनीफ कहते हैं पहला हार्ट अटैक होता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। 2 साल की उम्र से ही कोलेस्ट्रॉल चेक करा लेना चाहिए। 30 से 40 मिनट पैदल चलने से दिल की बीमारियों से बचा जा सकता है, वरना उम्र भर दवाएं खाते रहेंगे। पंजाब में पहली मरतबा काश्तकार को तमाम सहूलतें गांवों के करीब एक ही छत तले मैसर आएंगी। पंजाब के 4 अजला मुल्तान, बहावलपुर, साहिवाल और सरगोदा में मॉडल एग्रीकल्चर मॉल कायम कर दिए गए। वजीर आला मरियम नवाज का मजीद 10 अजला में मॉडल एग्रीकल्चर मॉल फौरी इक़दाम का हुक्म। कहा पंजाब के काश्तकार की सहूलत के लिए हर इक़दाम करेंगे। पंजाब के काश्तकार की तकदीर बदल चुकी है, अच्छे दिन आ चुके। मोमिना इकबाल से 2020 में मुलाकात हुई। मोमिना के साथ अंदरून और बैरून मुल्क मुतअद्दिद सफर किए, अखराजात खुद बर्दाश्त किए। मुस्लिम लीग नून के एमपीए साकिब चद्दड़ का एनसीसीआई में जमा कराया गया बयान सामने आ गया। साकिब चद्दड़ ने कहा मोमिना इकबाल की साबिका शादी और तलाक का इल्म होने पर शादी से इनकार किया। गुज़श्ता साल अगस्त में ताल्लुकात खत्म कर दिए। मोमिना की बहन रिमशा ने ब्लैकमेलिंग से 10,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर वसूल किए। मोमिना के अकाउंट में मुख्तलिफ औकात में 83 लाख रुपए मुंतकिल किए। मोमिना इकबाल के मोबाइल में बहुत सी तस्वीर और वीडियोज मौजूद हैं। मशकूक अफराद ने वीडियोज और तस्वीर वायरल करने की धमकियां दी। मोमिना मेरी अहलिया को तलाक लेने पर उकसाती रही। सिंध में रेबीज का एक और केस रिपोर्ट। हैदराबाद में कुत्ते के काटने की शिकार खातून को जिला अस्पताल कराची मुंतकिल कर दिया गया। अस्पताल हुकाम का कहना है 45 साल मरीजा में हाइड्रोफोबिया समेत रेबीज की दीगर अलामत की तस्दीक हुई है। रवा बरस सिंध में कुत्ते के काटने के 90,000 से ज्यादा केसेस सामने आ चुके। कराची में कुत्ते के काटने के बाद 10 अमवात हो चुकी। कराची पीडी पुलिस के हाथों मुकाबले में गिरफ्तार जख्मी मुलजिम नूर वली 90 लाख रुपए की डकैती का मास्टरमाइंड निकला। पुलिस का कहना है 14 फरवरी को 2 मुलजिमान ने सोलर इन्वर्टर डीलर के राइडर से कैश लूटा था। पहले से गिरफ्तार मुलजिम बिलाल और शीना सोलर इन्वर्टर डीलर का 10 साल से मुलाजिम था। मुलजिमान की निशानदही पर 45 लाख कैश बरामद कर लिया। फ्रीडम फ्लोटिला के समाजी कारकुनों से बदसलूकी। फ्रांस ने इसराइल के खिलाफ जंगी जराइम का मुकदमा शुरू कर दिया। फ्रांसीसी प्रोसिक्यूटर ऑफिस के मुताबिक इसराइली बदसलूकी के खिलाफ तहकीकात फ्रांसीसी हुकूमत की दरखास्त पर शुरू की गई। आयरलैंड ने इसराइल के 2 इंतहा पसंद मुजरा के मुल्क में दाखिले पर पाबंदी लगा दी।
کراچی میں حضرت عبداللہ شاہ غازی کا سالانہ عرس شروع ہو گیا. گورنر سندھ نہال ہاشمی نے مزار پر چادر چڑھا کر عرس کی تقریبات کا آغاز کیا. عرس میں شرکت کے لیے ملک بھر سے زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری. سیکیورٹی کے سخت انتظامات. انڈر 18 ایشین ہاکی کپ میں پاکستان نے برونز میڈل اپنے نام کر لیا. تیسری پوزیشن کے میچ میں پاکستان نے ملائیشیا کو 3-0 سے شکست دے دی. پاکستان کی جانب سے عدیل، حیدر اور عزیز نے ایک ایک گول سکور کیا.